In today's lecture, I will discuss the design of 4-bit arithmetic circuit. The block diagram. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक सर्किट से. We discuss b, then is a plus b plus 1, then is a minus a plus b complement, then is a plus b complement plus 1, then is a transfer a, increment a, decrement a. For example, I need to design a arithmetic circuit for these micro operations. So how we can design, we'll discuss. कि अभी तक हमने जितने arithmetic circuit, तो अभी ये question आपको given है, you have to find the answer. So firstly, in the truth table, like for first selection line d is equal to a plus b, second selection line a plus b plus 1, third selection line a plus b complement, fourth is a plus b complement plus 1, transfer a, increment a, decrement a. There may be many other variables. So after that, there may be one more operation like again transfer a, because 7 operations are not possible. So any one operation can be duplicate or any other operation. So for example, I am taking here d is equal to a. Any other operation can be possible, but we will implement it. Why we have taken the a? So this is the question truth table. How we can design? There may be many other operations, so we have to design the arithmetic circuit based upon that operation. For now, in this case, for example, I have 8 micro operations. So I will design the circuit for 8 micro operations. So this is a question, we are solving the answer. So how we can solve it? Like firstly, the question is design 4-bit arithmetic circuit. What is the meaning of 4-bit means? Suppose you have 4 bits, you need to add 4 bits, you need to decrement 4 bits. So this is the meaning of 4-bit. So for designing it, how you will design? Like firstly, if you need to design 4-bit arithmetic circuit, the first step जो आपका है, you have to take 4 full ladders. ये हमने पैरेलल बाइनरी एडर पहले भी पढ़ा था, तो हमने इसमें कितने लेने हैं? 4 फुल एडर्स लेने हैं. फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3. पहला स्टेप इसका ये है. पहला स्टेप क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स यू नीड टू ऐड, यू नीड टू डिजाइन ए सर्किट फॉर हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स. तो आपको कितने फुल एडर्स लेने हैं? 4 फुल एडर, जैसे हमने पैरेलल बाइनरी एडर में किया. तो अब जो फुल एडर्स हैं, we can see in the previous example, like which example we are discussing. In this example, a is given to every full adder. A is given to every full adder. So what we have to do? We have to give the a input to every full adder. Firstly, we are giving the a input. We are giving a input to every full adder. Like for example, it is a0. I can say it is a1. It is a2. It is a3. So full adder 4-bit क्यों है? Because we are designing 4-bit arithmetic circuit and we are giving a input directly to full adder. So we are using here a giving indirectly to the full adder. So after that, now we have a question in C. Like C carry, we are giving always the carry input to the full adder. Like for example, it is C0. So what about the B input? So question is how we can take the B input. Like किसी में B जा रहा है, किसी में B plus 1 जा रहा है, किसी में B complement जा रहा है, किसी में B complement plus 1 जा रहा है. तो 1 is, we will consider this 1 in the carry. तो आप इस 1 को छोड़ दो. Like for example, I am using 4 into 1 marks. I am using 4 into 1 marks for selecting B. तो first case में for example मैंने B दे दिया, second input इसका B complement दे दिया. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मैं 0 सपोज कर लेती हूँ. थर्ड इनपुट मैंने 0 दे दिया, फोर्थ इनपुट सपोज मैंने 1 दे दिया. तो इस केस में मींस आई हैव ए ऑप्शन इन द बी. पहली ऑप्शन क्या है? बी. इसको मैं कैरी में ले लूंगी. दूसरी ऑप्शन क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट. थर्ड ऑप्शन क्या है? 0. फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1. तो मुझे ये चूज करना है. व्हेनेवर आई एम डिजाइनिंग द ट्रुथ टेबल, I have to find out कि where are the options. There may be many other variables. So we have the options. We need to select a B.
So whenever we need to select one input out of many inputs, so we need to use a multiplexer. So why we have used multiplexer? This is an important point. Like first I am again कितने बिट का कितना होगा साइज उसका 4:1. क्यों 4:1 होगा? Because I have the 4 option. जब आपके पास 4:1 marks है तो आपके पास 4 inputs हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको B0 से डोनेट कर रही हूँ, B0 कॉम्प्लीमेंट, सपोज यहाँ पे 0 है, सपोज यहाँ पे 1, तो इसका जो आउटपुट जाएगा वो भी फुल एडर को जाएगा. तो इस फुल एडर का एक आउटपुट होगा सम, और इसका कैरी हमेशा नेक्स्ट को पास होता है. तो सिमिलरली इसका भी सम होता है और कैरी नेक्स्ट को पास होता है सम, और कैरी नेक्स्ट को पास होता है सम. तो सेम वे मल्टीप्लेक्सर शुड हैव 2 सिलेक्शन लाइंस. अगर आपकी 4 इनपुट्स और 1 आउटपुट है तो मल्टीप्लेक्सर की कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी? 2 सिलेक्शन लाइन. तो आई एम राइटिंग हियर 2 सिलेक्शन लाइन. One is S0, suppose another is S1. Similarly, I have another mux. आपको सेम सर्किट बनाना है चारों में. 4:1 mux सेम. अब यहाँ पे सेकेंड इनपुट जाएगी B1 complement. We will discuss it why it became 0 and 1. Then after that the output is, suppose यहाँ पे like third case multiplexer 4:1. यहाँ पे भी again B2 complement 0 and 1. तो यहाँ पे भी आउटपुट जाएगी. यहाँ पे थर्ड इनपुट 4:1 mux B complement 0 और 1. So we are discussing selection lines will be common. Like ये selection line है, मैं इसको as it is you can design yourself. Like selection line हर एक में common है. ये selection line आपकी यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, और ये selection line आपकी S0 S1 everywhere it is common. तो आपकी ये सिलेक्शन लाइन यहाँ भी जाएंगी. तो मींस जो आपकी सिलेक्शन लाइंस है वो सेम है. तो आफ्टर दैट हाउ हो रहा है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है. तो ये मेरा B0 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है. तो आपको इस वे से लेना है कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, B0. तो आपका B0 क्या जाएगा, आउटपुट पे जाएगा. अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0-0 हो तो मतलब मैं ये बोलूं कि फर्स्ट सिलेक्शन लाइन मेरी 0-0 है और मेरा कैरी क्या है, 0 है. अगर मेरा कैरी 0 है और सिलेक्शन लाइन 0-0 है तो यहाँ पे क्या गया, B गया, और यहाँ पे A तो हमेशा जा ही रहा है. तो मेरा यहाँ पे फुल एडर के पास क्या बन गया, A + B + 0, A0 + B0 + 0. तो यही मुझे चाहिए था. नाउ यू कैन चेक इट बाय एग्जीक्यूटिंग इट. लाइक सपोज आपके पास ये इनपुट है, आपने यहाँ पे A0 कितना दिया, 0 दिया, और B0 कितना दिया, 0 दिया. कैरी क्या है आपका 0, सम क्या चला गया 0, कैरी क्या गया 0. सेकेंड केस में आपका A1 1 है और B0 0 है. A1 आपका 1 है, B0 आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स हो रहा है वो B एज इट इज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 0 + 0, सम क्या आ गया 1, कैरी क्या आ गया 0. थर्ड केस में आपका A 0 गया डायरेक्टली और B क्या गया आपका 1 गया. तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 0 + 0 + 1, सम क्या आ गया 1 और कैरी क्या आ गया 0. फिर नेक्स्ट केस में आपका A क्या गया 1 और B क्या गया आपका 1. तो आपका 1 + 1 + 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, सम 0 आ गया और कैरी क्या आ गया 1. तो इन दिस वे योर आंसर, यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट बिट. लाइक लेफ्ट मोस्ट बिट इज 0, डबल 1 0, तो कैरी क्या आ गया आपका 1. दिस इज योर आंसर. तो मेनली व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग, तो हमने फर्स्ट इनपुट को वैलिड किया है. अभी फर्स्ट केस क्या डिस्कस किया है कि अगर मेरा ये 0-0 है, अगर मेरा फर्स्टली इनिशियली कैरी 0 है, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, A + B. ये क्वेश्चन में गिवन था. तो इसीलिए हमें ये खुद को माइंड लगाना है कि अगर मेरा सिलेक्शन लाइन 0-0 है, आई हैव टू मल्टीप्लेक्स B. तो मुझे B को मल्टीप्लेक्स करना है हर एक इनपुट पे. अगर यहाँ B0 जा रहा है, सेकंड में B1 जाएगा, थर्ड में B2 जाएगा और फोर्थ में B3 जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? सेकंड केस हमारा है S1 S0 और कैरी. तो सेकंड केस हमारा है कि सिलेक्शन लाइन सेम हो बट कैरी 1 हो जाए. तो उसमें मैं क्या आउटपुट चाहती हूँ, A + B + 1. तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कैरी 1 हो जाएगा. जब आपका कैरी 1 हो गया तो यहाँ से तो B जा ही रहा है, यहाँ से A जा रहा है. जब भी हम विद 1 इंक्रीमेंट करते हैं उसका हमेशा मीनिंग होता है, लाइक सपोज मैं आपको बोलूं कि 1 0 1 0 किया था आपने, 1 1 0 0, और उसमें आपने +1 और करना है.
तो ऑटोमेटिकली जो ये 1 है वो फर्स्ट बिट में ही हम ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली अगर कैरी आता है तो नेक्स्ट में पास होता जाता है। तो मीन्स जो ये 1 है इसको मैं एज ए कैरी ले लेती हूँ, तो ये क्या होगा 001, जो भी आपका आंसर आया तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। तो मीन्स मुझे सिर्फ कैरी में मैंने चेंज कर दिया, कैरी मैंने 1 ले लिया, इट इज सर्किट वी हैव टू यूज 2 फुल एडर्स। अगर आप 8 बिट बनाओगे तो 8 फुल एडर, अगर 6 बिट बनाओगे 6 फुल एडर्स, अगर 4 बिट बनाओगे 4 फुल एडर। सिर्फ उतना ही डिफरेंस होगा, जब आप 2 बिट अरिथमेटिक सर्किट बनाओगे तो आपके पास ऐसे लोगे, 2 बिट्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इट मींस आपको 2 फुल एडर यूज करने पड़ेंगे। अगर आप 8 बिट बनाओगे तो 8 फुल एडर यूज करोगे, अगर आप 4 बिट बनाओगे तो 4 full adder. It depends upon number of bits. Whenever you need to use a full adder anywhere, it depends upon number of bits, how many number of bits you need to add, subtract, or means to increment and so on. So we have to take the common number of bits, that is 4. In this case we have taken the 4 number of bits. So in 003 तो आपका a plus b जा रहा है, जब आपकी 001 है तो आपका a plus b plus 1 जा रहा है। तो after that the next case is, like suppose ये वाला केस है, थर्ड केस में क्या है आपका 010। तो आप खुद ही देखो, जब मैं 01 पास करूं तो मुझे क्या मल्टीप्लेक्स करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको खुद देखना है कि जब मैं 01 पास करूं मतलब मैं 01 पे क्या पास करना चाहती हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने बी कॉम्प्लीमेंट पास कर दी, मीन्स जब मैं 010 पास करूं तो मेरा आउटपुट क्या है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग है कि कैरी मेरा क्या होगा, 0 होगा, कैरी मेरा क्या होगा इस केस में 0 होगा, और मेरा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे b0 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे b1 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे b2 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे b3 कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस केस को हम इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि आपके पास a कोई इनपुट है, आपने b दिया, b का ये क्या लेगा, डायरेक्टली हमने अगर हम इसको नॉट गेट लगा देते, यहाँ पे आप नॉट गेट भी लगा सकते हो, आप इसको डिजाइन करते वक्त ऐसे भी ले सकते हो कि आपने यहाँ पे नॉट गेट लगा दी है, जहां भी आपका b है वहां पे हमने नॉट गेट लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली जो इनपुट जाएगी वो क्या जाएगी, 1010 और 1011 जाएगी, क्योंकि नेचुरली वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी मल्टीप्लेक्स होके। जब कॉम्प्लीमेंट हो गई तो इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये बन गया 110 कैरी 1110 कैरी। तो इसको चलाओगे यही आउटपुट आएगा। तो थर्ड केस है, फोर्थ केस हमारा है 011। फोर्थ केस में क्या करना है मुझे, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, मतलब इसको तो मुझे वैसे ही मल्टीप्लेक्स करना है, पर मेरा आउटपुट पे क्या चाहिए, कैरी क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, कैरी मेरा 1 है और मेरा एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। तो नेचुरली यू नो, अगर आपका a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 है, किसी केस में a0 b0 होगा, किसी में a1 होगा, किसी में a2 होगा, तो ऑब्वियसली वी कैन से इट इज a माइनस b। सो इन दिस वे यू कैन चेक कि ये a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 चल रहा है, यू कैन चेक इट प्रैक्टिकली, इट विल बी एग्जीक्यूटिंग लाइक a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो इसमें सिंपल क्या किया हमने, कैरी को 1 कर दिया और बी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लेक्स, 0101 सेम है तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ही मल्टीप्लेक्स होगा, तो हमने कैरी को क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो इससे नेक्स्ट केस है हमारा ये क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा 10। तो नेचुरली अगर 10 है तो a जा रहा है अकेला, मतलब b का कुछ भी नहीं जा रहा, तो हमें पता है 10 पे क्या मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा, हमें 0, और कैरी क्या लेना पड़ेगा, 0। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया, थर्ड इनपुट में 0 को मल्टीप्लेक्स किया। व्हाई वी हैव मल्टीप्लेक्स 0, बिकॉज वी नीड, अगर आपके पास सपोज आपके पास था 100, तो इसका मतलब जो 100 है मुझे उस पे a चाहिए, a का मतलब b में कुछ नहीं है तो मैं इसको 0 लिख सकती हूँ। तो इसका मीनिंग हुआ कि 10 पे जब मुझे a चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a तो हमारा डायरेक्टली जा ही रहा है, तो 10 पे मैंने 0 भेज दिया। तो इसका मतलब जब भी ये इनपुट चलेगी तो हमारा आउटपुट पे क्या जाएगा, सिंपल 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और कैरी भी आपका क्या है, इसमें 0 है। तो आपका इसका मतलब हर फुल एडर को सिर्फ a इनपुट जा रही है, तो a ही डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है 101। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 तो सेम ही है, मल्टीप्लेक्सर को 10 तो सेम ही है, तो हर एक जगह पे 0 जा रहा है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ गया, सिर्फ डिफरेंस आ गया आपका कैरी, कैरी क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, a प्लस 1, तो ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा क्योंकि यहाँ पे कैरी क्या हो गया 1। तो नेक्स्ट केस हमारा है
110, ये इंपॉर्टेंट केस है कि 110 इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसको करना है, सपोज मुझे इसको करना है डिक्रीमेंट ए, तो इसको कैसे करें कि हम डिक्रीमेंट ए का ऑपरेशन करेंगे, तो इसके पास कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब मैंने इसको हर इनपुट को मैंने 1 पास किया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर जगह पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इसको चला के देखते हैं इस इनपुट को। लाइक मैं कोई ए केस ले लेती हूँ। लाइक सपोज मेरे पास ए इनपुट है 1011, ये मेरा ए है। इसका मीनिंग क्या हो गया, A0। ये क्या हो गया, A1, ये A2, A3। पहले तो हमारे पास ए की इनपुट क्या चलेगी, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। सबसे पहला क्लियर कि हमने क्या कर दिया, 1011 को पहले लोअर बिट से शुरू करना है। पहले 1 दे दिया, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और अब इसमें -1 करना है। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये -1 कर रहा है, इसको चला के देखते हैं। तो इसमें कैरी क्या लेना है, 0। कैरी हमने क्या अज्यूम करना है, इस केस में हमारा कैरी क्या है, 0 है इसके लिए। अब कैरी 0 है, जब मैं 1 1 दे रही हूँ तो क्या पास कर रही हूँ, 1। जब ये मल्टीप्लेक्सर दिया तो इसने क्या पास कर दिया, 1 पास कर दिया। तो ये सर्किट कैसे चलेगा आपका, यहाँ पे 1 + 1 + 0, तो ये 1 1 0, तो ऐड हुआ, सम क्या आ गया 0, कैरी क्या आ गया 1। सेकंड केस में भी क्या हुआ, 1 1 1, तो सम क्या आ गया 1, कैरी क्या आ गया 1। हम आंसर को सर्कल करते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 + 0, सम क्या हुआ 0, कैरी क्या आ गया 1। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या आ गया, सम क्या आ गया 1 और कैरी क्या आ गया 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 0 1 0 1। ये आपका आंसर आ गया। आप ऊपर से नीचे लिखोगे आंसर, बिकॉज दिस इज योर LSB। तो आपका आंसर यही आ गया, और कैरी 1। जब आपका कैरी आता है, व्हेन यू आर यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, इफ देयर इज ए कैरी, इट मींस योर नंबर इज पॉजिटिव। तो ये मेरा डिक्रीमेंट कर रहा है जब मैं 1 पास कर रही हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लाइक कोई नंबर है आपके पास A 0 1 2 3, अगर मैं सब में 1 1 ऐड कर दूंगी तो ये किसका काम करेगा, इट इज इक्वलेंट टू A - 1। इट इज अ डिक्रीमेंटर, इट इज डिक्रीमेंटर। ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन वन ऑफ द लेक्चर कि अगर आप किसी भी नंबर में उतने ही 1s ऐड कर दोगे तो आपका आंसर किसके इक्वलेंट आएगा, A - 1। Why? Because this is equivalent to 2's complement of 1. Whenever you will add 2's complement of 1, 2's complement of 1, so what will be your answer here? That is basically A - 1. So what is 2's complement of 1? Like 0001. So then 110, then 111. Means this is the 2's complement of 1. This is the 2's complement of 1. So whenever we need to add everywhere all ones, it indicates your answer will be, when you add all ones to any number, your answer will become equal to A - 1 or decrement 1. So this is the way which we have done. After that, as part is 1 1 1. तो अब इस केस में क्या हुआ, सिलेक्शन लाइन तो सेम है 1 1, तो इसका मतलब 1 ही जा रहा है, पर सिर्फ कैरी में डिफरेंस आ गया। तो ऑटोमेटिकली अगर मेरा पहला इनपुट A - 1 आ रहा था, अगर मैं इसको +1 कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, A। तो इसीलिए हमने ट्रांसफर A 2 बार आ रहा है, यहाँ भी ट्रांसफर A आ रहा था और यहाँ भी ट्रांसफर A आ रहा है, क्योंकि जब आपके 7 ऑपरेशन है, कोई भी 2 ऑपरेशन आपके कॉपी हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसलिए हमने ट्रांसफर A रिपीट किया है। इज इट क्लियर?